شرجیل خان اور خالد لطیف کی فوری معطلی، عرفان کو پہلے کلیئرنس کے بعد کھیلنے کا چانس، پھر سزا، کئی سوال اٹھ گئے۔ اگر آپ کی حاضری جو ہے 60% سے نیچے ارادی چلی جائے گی تو ہم آپ کو 5% اس کے ایڈیشن دیں گے جو بچیاں حجاب کریں گی۔ حجاب پر طالبات کو نمبر دینے کی تجویز رضا علی گیلانی کے گلے پڑ گئی۔ کسی وزیر کے بیان کو سرکاری پالیسی نہ سمجھا جائے، ہر طرف سے سخت رد عمل کے بعد پنجاب حکومت میدان میں کود پڑی، طالبات بھی حیرت میں مبتلا۔ میرے خیال سے مارکس جو ہے میرٹ بیسڈ ہونے چاہیے، آپ کے لباس سے آپ کو مارکس نہیں ملنے چاہیے۔ میری رائے میں 5 نمبر خالی ایک لباس کے پہننے کی وجہ سے نہیں ہونے چاہیے، وہ اہلیت کی وجہ سے ہونے چاہیے۔ دنیا نیوز کی خبر پر آصفہ بھٹو کا فوری رد عمل، پنجاب حکومت بتائے دوسرے مذاہب کی طالبات اور لڑکوں کا کیا بنے گا؟ گریڈ اور اضافی نمبرز کے لیے حجاب کیوں؟ کچھ لوگوں نے مذہبی اقدار کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا۔ اسلام میں طاقت سے مذہب کی تبدیلی جرم ہے۔ مذہب کے نام پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرنے والے اسلام کی درست تشریح نہیں کرتے۔ وزیر اعظم کا کراچی میں ہولی کی تقریب سے خطاب۔ کراچی سرکولر ریلوے کو سی پیک منصوبے میں شامل کرنے کا اعلان، آئندہ الیکشن میں سندھ میں بھی بھرپور مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کو ارادے بتا دیے۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے اسپیشل گرانٹ کا اعلان کریں، ایم کیو ایم کا مطالبہ، متحدہ رہنماؤں نے نواز شریف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کا مقصد فوجی آپریشنز کی کامیابیوں کو دیر پا امن و استحکام میں تبدیل کرنا ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاک برطانیہ مشترکہ سیمینار سے خطاب۔ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد ناقابل برداشت، وزیر اعظم کی فوری طور پر مواد ہٹانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے کارروائی کے لیے 6 کمیٹیاں بنا دیں، قومی اور پنجاب اسمبلی میں قراردادیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اچانک کڈنی سینٹر ملتان آمد، مفت ادویات نہ ملنے پر ایم ایس کی سرزنش، ریکارڈ میں بے ضابطگی پر محکمہ صحت کے حکام کی ڈانٹ ڈپٹ۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں مقتول رہنما بابر سہیل بٹ کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، کہتے ہیں حکومت نے سیاسی جماعتوں کے لیے لاہور کو نو گو ایریا بنا دیا۔ پاناما کا ہنگامہ نہ ہوا پرانا، پھر ہر طرف گونج، کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنائے جانے کا امکان، اٹارنی جنرل نے اشارہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اور 5 ججز ہی بتا سکتے ہیں فیصلہ کب آئے گا، مخدوم علی خان کا تبصرہ۔ نون لیگ کی ایک اور وکٹ گر گئی، جعلی ڈگری کیس میں ایم پی ضیاء الرحمان نااہل، پیپلز پارٹی کے مخالف امیدوار نے اہلیت چینج کی تھی۔ مردم شماری کی تیاریاں مکمل، 19 سال بعد کل پہلے مرحلے کا آغاز، پنجاب میں مردم شماری صوبائی اسمبلی سے شروع کرنے کا فیصلہ، غلط معلومات دینے پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ۔ کوئٹہ میں ہنستے بستے گھر میں صفے ماتم بچھ گئی، ریت سے بھرا ڈمپر گھر کی چھت پر جا گرا، ماں باپ، 3 بچے اور 2 مہمانوں کی زندگیوں کے چراغ گل، انتظامیہ تک بہت دیر سے خبر پہنچی۔ کراچی کے گلی محلوں میں منشیات کا سرعام دھندا، گٹر باغیچہ شہر بھر کے نشئی افراد کی جنت، سٹال لگا کر زہر کی فروخت، رحمان ڈکیت کے رشتہ دار سرپرست پولیس بھی ملوث۔ لاہور میں شہری پر فائرنگ اور ڈرانے دھمکانے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس پر ڈی ایس پی نذر عباس معطل، دونوں بیٹے علی اور بلال گرفتار، مقدمہ درج کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کیس، پولیس نے رؤوف صدیقی کو بے گناہ قرار دے دیا، سابق وزیر داخلہ مقدمے میں ملزم ہیں نہ مطلوب، تفتیشی افسر کی رپورٹ۔ بحریہ ٹاؤن کا صاف کراچی مشن، ضلع وسطی میں دوسرے روز بھی 3 مقامات پر بھرپور کوشش،
सब काम मलिक रियाज ने ही करने हैं तो उन्हें ही वजीर आला बना दें, शहरियों की ख्वाहिश। जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है उसको जो है ना इस्तीफा दे के जो है ना रियाज मलक को जो है ना वहाँ बिठाना चाहिए। मलक साहब जो है ना बिल्कुल ये काम कर लेंगे। 10 साल के अंदर 10 बजट आते हैं, हर साल का एक बजट है, ये पैसा जाता कहाँ है? सियासत, मईशत, खेल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत हर शोबे में पाकिस्तान तरक्की के ट्रैक पर चल निकला। PSL फाइनल बड़ी कामयाबी है। मरदमशुमारी जैसे हुकूमती फैसले बहुत अहम हैं। बरतानवी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट का एतराफ। तुर्क सदर डट गए, हॉलैंड की मुआफी मुस्तरद। तैयब अर्दोगान कहते हैं मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आइंदा एंगेला मर्केल को वोट न दें। जर्मनी में रहने वाले तुर्कों को भी हिदायत। सुहेल तनवीर और उमर अकमल फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम। कामरान अकमल समेत बाकी खिलाड़ी कामयाब। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए टीम का ऐलान कल होगा। वॉशिंगटन, बोस्टन, शिकागो समेत कई अमेरिकी रियासतों में बर्फबारी। सैकड़ों परवाजें मंसूख। तूफान स्टेला से मजीद तबाही का खदशा। हुकाम ने वार्निंग जारी कर दी। हमारे पॉलिसी साज कितने पक्के हैं अंदाजा कीजिए। वजीर हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब की फुर्ती उनके गले पड़ गई। तालिबात हिजाब पहने 5 इजाफी नंबर्स पाएं, ये कहना है अली रजा गिलानी का। लेकिन पंजाब हुकूमत को तरदीद करना पड़ गई जब मुखालिफत हुई। ऐसी कोई पॉलिसी ज़ेर गौर नहीं, ये कहना था तर्जमान पंजाब हुकूमत का। रजा अली गिलानी भी फिर ऐलान से फिर गए। वजीर तालीम है या जेरे तालीम, इतना भी पता नहीं कि बोलने से पहले तोलते हैं, नहीं तो फिर फुर्ती ऐसे घुमाती है जैसे फिरकी। पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोई फैसला हुआ नहीं। हिजाब पहनने वाली कॉलेज तालिबात के लिए 5% इजाफी नंबर्स और मुराद का ऐलान कर दिया। मैं सिर्फ आपसे ये हिजाब मुफ्त में नहीं करवाऊंगा, मैंने उसके लिए एक पॉलिसी भी रख दी है कि आपके एडमिशन के अंदर आपको 5 मार्क्स जो हैं वो आपको 5 मार्क्स, अगर आपकी हाजिरी जो है 60% से नीचे चली जाएगी तो हम आपको 5% उसके एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब करें। दुनिया न्यूज पर खबर चली तो हर तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आसिफा भुट्टो भी मैदान में आ गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इजाफी नंबर्स के लिए लड़के क्या करेंगे, दीगर मज़ाहिब की तालिबात का क्या बनेगा। तालिबात के लिए मुराद के ऐलान की गूंज पर तलबा भी गुस्से में आ गए। मार्क्स जो है मेरिट बेस्ड होने चाहिए, आपके लिबास से आपको मार्क्स ही मिलने चाहिए। इजाफी मार्क्स की बात कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इस तरह बेचारे लड़के क्या करेंगे, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। पैटर्न के ऊपर जो है वो आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। चारों तरफ से तनकीद के निश्तर बरसे तो पंजाब हुकूमत को अपने ही वजीर के बयान की तरदीद करना पड़ गई। राना सनाउल्लाह वजाहत के लिए सामने आए और हुकूमती सतह पर ऐसे किसी फैसले से लाताल्लुकी का इजहार किया। उनका कहना था कि फैसला तो दूर की बात, मामला किसी सतह पर डिस्कस भी नहीं हुआ। पता नहीं वजीर ने कहां से हिजाब की बात की। मामला बिगड़ा तो रजा अली गिलानी ने भी यू टर्न ले लिया। कहने लगे फैसला नहीं हुआ, सिर्फ तजवीज दी। ये अभी एक हमारी एक मीटिंग में एक तजवीज के तौर पे हिजाब के बारे में डिस्कशन हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इसको लिया ये ऐसे गया कि ये पॉलिसी डिसीजन है। इट्स नॉट अ पॉलिसी डिसीजन, इट्स जस्ट एन एजेंडा आइटम ऑफ वन मीटिंग। ऐसी कोई डिसीजन अभी नहीं हुई। शहरी बदलती हुई सूरत हाल पर हैरानगी का इजहार करते रहे, जबकि तालिबात भी वाज़े ऐलान के बाद इसकी वापसी पर हैरत में मुब्तला रही। वजीर की सुन ली, अब वजीर आजम की सुनिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि मजहब के नाम पर शहरियों के हुकूक में फर्क करने वाले इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं करते। अवाम ने कभी नफरत की सियासत कबूल नहीं की। जबरदस्ती मजहब तब्दील करना इस्लाम में जुर्म है। पाकिस्तान किसी मजहब की मुखालिफत के लिए नहीं बल्कि मजहबी तसादुम रोकने के लिए वजूद में आया। कराची में हिंदुओं के मजहबी त्यौहार होली की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि कुछ लोगों ने मजहबी अक़दार को पाकिस्तान की कमजोरी बनाना चाहा। पैगम्बरों ने इस्लाम की दावत दी, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं की। इस्लाम तमाम इंसानों को एक नजर से देखता है। वो सबको मजहब के इंतखाब का हक देता है और ताकत से मजहब की तब्दीली को
जुर्म करार देता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मजहब के नाम पर शहरियों के हुकूक में फर्क करने वाले इस्लाम की दुरुस्त तशरीह नहीं करते। कौमी रियासत में सब शहरियों के हकूक बराबर होते हैं और जो लोग मजहब की बुनियाद पर शहरियों के हकूक में फ़र्क करते हैं वो मजहब की दुरुस्त ताबीर नहीं करते। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमारा काम लोगों की जन्नत और दोज़ख का फैसला करना नहीं बल्कि सबके लिए दुनिया को जन्नत बनाना है। हमारा काम लोगों की जन्नत और दोज़ख का फैसला करना नहीं है, सबके लिए इस दुनिया को जन्नत बनाना है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान का आइन सब शहरियों को यकसा हुकूक देता है। कोई मजहबी या इलाकाई तासुब तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म के बाद जिक्र आर्मी चीफ का, कहते हैं ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद कामयाबियों को देर पा अमन में बदलना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने दहशतगर्दी इंतहा पसंदी के खिलाफ भरपूर काम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया सेमिनार से खिताब किया। कराची में मनशियात फरोशी सनद बन गई। दुनिया न्यूज की निशानदेही के बावजूद पुलिस नोटिस लेने पर तैयार नहीं। मुश्ताक सरकी की रिपोर्ट। कराची के थाना पाक कॉलोनी के सामने बस्ती है ऐसी बस्ती जहां जाकर किसी की हस्ती नहीं बचती। गटर बागीचे में नशइयों की जन्नत दुनिया न्यूज ने बेनकाब कर डाली। क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, चरस समेत हर किस्म के नशे की फरोख्त का जिम्मेदार न पुलिस की नाअहली है न माफिया, बल्कि है इलाके का जोग्राफिया। जान छुड़ाने के लिए पुलिस को यही मंतक सूझी। उस एरिया की ज्योग्राफी बड़ी डिफरेंट है, बड़ी तंग छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें हमारी मोबाइलें पेट्रोल नहीं कर सकती, और दूसरी साइड पे नाला है और नाले के उस साइड पे कब्रिस्तान है। 30 सेकंड के फासले पर मौजूद थाना नशेइयों की आमदरफ्त से बेखबर नहीं। कौन सी गली किधर को चली, एसएसपी वेस्ट को पूरी है मुखबरी। थाने वाले एरिया देखा है, जो गलियां देखी हैं, पीएमटी वाली गली की आप बात कर रहे होंगे, वो रास्ता जनरली यूज नहीं करते। ये जनरली यूज जो करते हैं बैक साइड पे जो कब्रिस्तान है रिजविया के एरिया में, वहाँ से मूव करते हैं। रोजाना 38 से 40 लाख रुपए कमाने वाला धंधा खत्म करने के लिए पुलिस के पास भी वही 100 रोजा प्लान है जिसने शहर की तकदीर बदल दी। एक रोड मंजूर हो गई है, यहाँ पे 2 पिकेट्स यहाँ पे मंजूर हो गई हैं। रोड पे पेट्रोलिंग और लाइटिंग का बंदोबस्त होगा, नाला वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब सप्लाई डिमांड खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे कारोबार करने का मंशियात का जवाब भी खत्म हो जाएगा। पुलिस की संजीदगी देखकर बखूबी अंदाजा हो जाता है कि शहर में जहर की फरोख्त के ये मराकज कैसे वजूद में आए और क्यों खत्म ना हो सके। कैमरामैन खलील आदिल के साथ मुश्ताक सरकी, दुनिया न्यूज कराची। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रखिए दुनिया न्यूज के साथ। मुल्कगीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोधा समेत कई शहरों में छापे। 3 अफगानियों समेत 33 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। मर्दमशुमारी के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी नहीं। इसहाक डार का कहना है पाक फौज की शमूलियत से शफाफियत में मदद मिलेगी। और इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान परेड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। दफा 144 नाफिज। मेट्रो बस सर्विस 23 मार्च को शाम तक बंद रहेगी।